ये एक एक पैसेज पकड़ लो. Now, firstly, we'll understand the nature of the exam, then we'll go right ahead into the passage, right? Now, exam is 2.5 hours. So, कितने मिनट? 150. ठीक है जी. Exam when I took it in 22 was from 2 to 4:30. Last time around it was 10 to 12:30. Like for example, this year जब हुआ it is 10 to 12:30. Now, there are two segments to this exam. One is called as part A, one is called as part B. Part A is primarily critical reasoning, English, CA, that is current affairs, very normal regular current affair. पिछले साल पूछा था रोमेनिया में किस इंटरनेट पर्सनालिटी को अरेस्ट कर लिया गया? एंड्रू टेट. Pop culture MCQs, not necessarily sarkari. See, this is primarily a very left-leaning university that you are attempting at. Professors are very, very left-leaning. They tend to ask questions on the left-hand side of things. Alright, so internet पे कुछ हो रहा है, like some major news is broken. So they're not exactly very concerned with what Modi ji is up to. Net, what the union is up to, as we discussed in the CUET PG वाली class. They don't care. They care about international stuff. 22 में एक क्वेश्चन आया था, नेतांजी जैक्सन करके कोई यूएस में सुप्रीम कोर्ट जज हैज रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग यूएस सुप्रीम कोर्ट जजेस, एंड आई वाज लाइक, सो शी वाज द फर्स्ट ब्लैक वुमन हु बिकेम द जज. केतांजी जैक्सन था उसका नाम, नेतांजी जैक्सन मैंने बोला. केतांजी जैक्सन जी का ये इन्होंने काम कराया. केतांजी जैक्सन वाज अ स्टैंडर्ड एमसीक्यू बिकॉज शी वाज द फर्स्ट ब्लैक फीमेल जज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. You think DU or any central Sarkari university is ever going to ask such a question? Never. Why? We don't care what happens in the US. This university cares. So to tackle out, always to prepare is to prepare for the exam that you are going to attempt. Not general preparation कर ली सारे exam निकल जाएंगे, होता ही नहीं, होता ही नहीं. Just because you know who knows how to drive a car. Is it necessary that you know how to ride a bike as well? ये बाइक का पेपर है, CUET गाड़ी चलानी, नेट कोई बीच में रिलेशन कॉमन मोस्टली नहीं है. ठीक है जी. अच्छा, 2.5 घंटे में क्रिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड CA. सो मेनली जो काम है दैट इज क्रिटिकल रीजनिंग का काम है. अराउंड 70 to 80% of part A is critical reasoning. What is the author saying? What does the author mean when he has said that? What will the author agree with? What will the author disagree with? Usually इसका केवल एक ही सामान उपलब्ध है in the market, which is cat books, CAT, cat books. But the passages are of insane level. We are working with 1/10th of that level. अब आप कहेंगे अगर उतना डिफिकल्ट कर लूँगा तो ईजी तो कर ही लूँगा, शायद नहीं. The only other reference material available in the market for this is CLAT the paper, ever since 2020. So we'll give you all of that as well. 20, 21, 22 का भी papers and 23. Sorry, 23 तो पिछले साल हो गया. 24 वाला पेपर जो इस साल जो होगा उसका लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन इज टेक्निकली स्पीकिंग योर पार्ट ए का क्रिटिकल रीजनिंग. इट इज वन एंड द सेम ब्लडी थिंग एट द सेम लेवल, सेम MCQs. तो जिन्होंने क्लैट दिया था 2020 के बाद की बात कर रहा हूँ, 2020 से पहले तो इट इज़ ऑल यूजलेस नाउ, बिकॉज 2020 का क्लैट यूज टू बी 1-to-1 ऑफ DU LLB लाइक इट यूज टू एग्जिस्ट. इनफैक्ट DU LLB यूज टू कॉपी सो मच फ्रॉम क्लैट दैट 16 में अगर क्लैट में कोई क्वेश्चन आया 17 DU LLB में पक्का आएगा. हाउएवर नाउ वी आर लुकिंग एट क्लैट 2020 से पैटर्न. सो वी वॉन्ट टू प्रैक्टिस ऑल ऑफ दैट आउट. आ जाओ प्रभ. तो इधर आ जाते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में. इंग्लिश स्टैंडर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस कौन से लेवल के? स्टैंडर्ड 10th लेवल के, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. स्टैंडर्ड एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस यू नीड टू नो. Slightly will need to increase your vocab just in case they want to ask or something on those lines. Right? This 2.5 घंटे का पेपर है, right? What do you think is your time limit for this side? 1 hour. 1 hour 10 minutes. इससे ऊपर अगर इधर दिए ये नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ लिखना है.
यहाँ पे लिखना है दिस इज प्राइमरली ओनली वन थिंग, लीगल रीजनिंग प्लस 15 मार्क का essay / question. However, this only gets assessed when you score a 75 percentile in this. What do you mean by 75 percentile? How many are we? Let us just, चलो एक काम करते हैं, let us assume that we are 100. वैसे ऐसा कभी हुआ ही नहीं आज तक, जल्दी हो थोड़ा हमारा बैंक बैलेंस बढ़े, लेकिन मान लेते हैं 100 हैं, ठीक है जी, 100 हो गए. You need to be scoring in the top 25. अच्छा, let us say this is 75 marks. ये वाला जो है this is 75 marks, ठीक है जी, this is 75 marks. Let us say the topper here has scored 50 only. Next 25 के पेपर असेस होंगे. अच्छा, हमने तो एग्ज़ाम वो लिया था आपका जो 100 की बेस सैम्पल लिया था, यहाँ पे दे रहे होंगे पेपर रफली 7,000 to 8,000 और उससे ऊपर नहीं देते लोग पेपर. 7,000 के आसपास ऑन एन एवरेज, यू कीप इट इन माइंड. 7,000 में द टॉप 25% हु स्कोर्ड इन पार्ट ए, उनका पार्ट बी जाके असेस होगा. लास्ट ईयर द कट ऑफ फॉर पार्ट ए वॉज समवेयर अराउंड 50 to 52.5. मैंने RTI लगा रखी है, जैसे RTI का जवाब आएगा I'll give you the data, exact data, because it's a very opaque admission process. They do not release the data unless and until someone takes some effort and files an RTI. मैंने लगा दी. I think महीने डेढ़ में आपके पास information आ जाएगी कि क्या है क्या नहीं. However, जो मेरी एक स्टूडेंट थी, she reported कि 52.5 से नीचे किसी का कुछ नहीं हुआ. 50 to 52.5 से नीचे इन्होंने पार्ट बी, आप शानदार लिख कर आए 7वें आसमान के आंसर, पढ़ेगा ही नहीं. अगर पढ़ा ही नहीं तो शानदारियत लिख के भी क्या कर लिया हमने, पढ़ना ही नहीं. ही विल जस्ट स्क्रैप द आंसर शीट. सो टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज प्रीलिम्स. However, this score is calculated. This score is not screening only. This score is calculated in the overall merit list. That wasn't the case in 22. It used to be screening only कि एक काम करो केवल सारा पेपर यहाँ पर, और एक और पोर्शन था, that was an interview. पता नहीं इन्होंने 3 year LLB को UPSC बना के रखा हुआ था. But then they got sick and tired of the process, so they changed it. Now it is a much simpler process. Earlier there were, I think, 10 passages coming. Now I think it is only 6 passages of 10 marks each, and very simple ones, not very tough ones. Earlier the paper that I took 22 में हाथ ही टूट गया था. 4 बजे के आसपास लगा था भाई क्वेश्चन पेपर उठा ले. वैसे तो खैर मेरे को तो सीट चाहिए ही नहीं थी, लेकिन बाकी लोगों के भी दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो गया था. दे टुक दैट फीडबैक. ये यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी एडवांटेज है, दे लिसन. सरकार में कोई सुनवाई नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी है भाई. 5 year लॉस इनमें तो नंबर 1 ही. अच्छा, और अपनी प्रेस्टीज वैल्यू है ही. मतलब इट इज़ बेसिकली लाइक Audi वर्सेस लेट अस से Hyundai. चाहे Hyundai की गाड़ी शानदार हो, लेकिन Audi होती है, ठीक है जी. चाहे वो कूड़ा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया को. वैसी प्रेस्टीज वैल्यू, ठीक है जी. अच्छा, 1 घंटा 10 मिनट हमें इसके लिए भी चाहिए. 10 बजे अगर पेपर शुरू हुआ अगले अप्रैल में, 11:10 पे जितने भी हो रखे हों वहीं रोक लेना और पूरे करके फिर वापस आ जाना अगर टाइम बच जाए तो. बट ये चीज़ हम मॉक से ज़्यादा कैलकुलेट करेंगे कि हम लोग इंडिविजुअली कहाँ कहाँ हैं. इस पेपर का एक ही तोड़, दिस ट्रेनिंग, सेकेंड मॉक, नथिंग मच मोर इज रिक्वायर्ड. नो बुक यू हैव टू पिक अप, नो लक्ष्मीकांत, नो नथिंग यू हैव टू पिक अप. अच्छा, thirdly, you will whatever passages that we will be doing, ये passages में से एक नहीं आएगा, be rest assured. जो मॉक में पैसेज होंगे वो ऑफ कोर्स इससे डिफरेंट होंगे, उनमें से भी एक नहीं आएगा, be rest assured. क्यों? कौन सी किताब में से कौन से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, you will be able to tackle the question. That's just about it. अभी तक काफ़ी लोग जो ऑनलाइन भेजते अरे मॉक में जो दिया है वो तो आया ही नहीं. भाई साहब, हो ही नहीं सकता. अच्छा, CUET PG में पक्का आ जाएगा. आर्टिकल जो हमने प्रियम्बल जो उस दिन जो हमने करा, उसके बाहर कहाँ जाएगा ये?
फिर जाके दिखाइए ज़रा कैसे जाएगा। बैरक्ट है ये, तुझे भी फॉलो करनी, चंद्रू को भी फॉलो करनी, मोदी को भी फॉलो करनी, करेक्ट। और एग्जामिनर अगर वही फॉलो करेगा तो उसमें से जितने क्वेश्चन हमने उस दिन एक्सट्रैक्ट आउट करें उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। बी रेस्ट अश्योर्ड ऑन दैट। हाउएवर इसमें कॉन्सेप्ट आएंगे, कंटेंट रिपीट नहीं होगा। बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब भाई जो लीगल सिचुएशन मैं बना के दूंगा आपको पार्ट बी में, हाउ ऑन अर्थ इज इट पॉसिबल कि वो वहां रिपीट हो जाए, और अगर हो गई तो हम कराए थे, हमारे कंटेंट में से सवाल आया, हमारे मटेरियल में से सवाल आया, ऐसे एक वीडियो बन जाएगा और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। यही होता है यूट्यूब पे। इट केम आउट, द क्वेश्चन हैज पॉप्ड अप फ्रॉम आवर मटेरियल, रैंडम तुक्का है वो, हो गया तो बहुत ईश्वर की कृपा, नहीं भी हुआ तो यू नीड टू बी कॉम्पिटेंट इनफ टू टैकल दिस। ओके, लीगल रीजनिंग में क्या होगा? गुनिका जी गाड़ी कहाँ पार्क करिए? बाहर पार्क करिए, इधर पार्क करिए, रोड के सामने करिए, इधर पार्क करिए। गुनिका जी हैज पार्क्ड हर कार आउटसाइड TLOI Academy. Some random person doesn't like Gunika and takes a key and scratches the entire side of the car. Hopefully not. ठीक है जी, ठीक है जी, अच्छा अच्छा जी। फिर एक और फन फैक्ट दे देगा, दैट पर्सन ऑलरेडी न्यू गुनिका एंड गुनिका हैड अब्यूज्ड हिम इन द पास्ट। डिसाइड, दैट्स इट। नो लॉ, no IPC, no constitution. You are free to argue or rather decide in favor of Gunika कि no, Gunika should get compensation from the other person, or she should not, she should have been more careful while parking her car. Why did she leave it on the road? अच्छा, आप कहेंगे ये तो दोनों ही सही लग रहे हैं, हाँ, लेकिन आप एक पे टिकिए। वकालत, वकील बनने का एग्जाम है ना, दे आर टेस्टिंग वेदर यू कैन गिव आउट वेरी क्रेडिबल reasons for your argument. I am not even saying legal reasons. Acha, if they use any law, they are going to state the law. They are going to state the law. So for example, let us say in the paragraph itself, in passage itself, they say no, nothing is an offense done by a child less than 7 years of age. और इसी केस में चाबी लेकर बच्चा था 5 साल का. Now you have to stick to the law and you can perhaps only write one answer, which is that Gunika will not get compensation thanks to the child being less than 7 years of age and nothing is an offense done by that. Understood? तब एक ही आंसर बन जाएगा. अच्छा, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन में ये बोलेंगे वकील बनो, कि केवल गुनिका की साइड से आर्ग्यू करो कि गुनिका को कॉम्पनसेशन मिलेगी ही मिलेगी. मोस्टली क्वेश्चंस में आपको जज बना देंगे और कह देंगे डिसाइड. So it is an open-ended answer. Both the point of views are correct. Then comes the 15 marker essay question. India that is Bharat or Bharat that is India? Comment. 15 marker. Any hot topic. Women reservation in Lok Sabha. Do you think this pops up? I believe this pops up in an alternate form. Why do we need reservation for women in the Lok Sabha? Question mark. 15 marks. कितनी शीट लिखेंगे? 3 मिनिमम. क्वेश्चन पेपर बुकलेट के अंदर ही जगह है. क्वेश्चन पेपर बुकलेट के अंदर जगह आपको दे देंगे और कह देंगे प्लीज़ इसको फिल आउट कर दीजिए. ठीक है जी, एंड दैट्स इट, दैट इज़ द पेपर. अच्छा, आप जी दैट्स इट, इन्होंने तो बड़ी आसानी से बोल दिया. सिलेबस वाइज बोलूँगा. एज सून एज क्रिटिकल रीजनिंग इज डन, यू आर थ्रू. नाउ सबके सब निकालेंगे अपना फ़ोन और उसमें निकालेंगे टाइमर ऐप. ठीक है जी, आपको मैंने एक पैसेज का प्रिंट दिया, किसी को नहीं मिला है? Is there anyone who hasn't got it? Everyone's gotten? ठीक है जी, मॉक 1 नहीं, सेपरेट पैसेज, वो जो डबल साइडेड प्रिंट जो मैंने अभी जो दिया है. ठीक है जी. अच्छा, यू केम लेट. तान्या जी के लिए हमने घंटी लगाई है. अरे उस दिन ऐसे बोलते बोलते आसानी नहीं लगती. अच्छा जी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ. टाइमर लगा दीजिए आप. अच्छा, आप खुद देखिएगा पैसेज. 1 सेकंड दिखाना गुनिका. कितनी देर लगनी चाहिए टू ब्रॉडली ब्रश थ्रू इट? 4 minutes, 5 minutes. ठीक है जी. अच्छा, अब नाउ यू टेल, यू ओनली टोल्ड मी इट वॉज 1 hour 10 minutes. ठीक है जी. ABCDEFGH 8 passages are going to be given to you and you have to solve questions as well. कितना पर मिनट? ऊपर से ऊपर 8.
अच्छा, एक पैसेज होगा विच इज़ गोइंग टू सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट पैसेज विद करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मोस्टली. एक पैसेज होगा जो बिल्कुल मतलब लगेगा कि ये क्यों है यहाँ पर, आत्मा दुखी पैसेज एक होगा, बाकी मीडियम लेवल के होंगे. एक बहुत आसान होगा टू सेव यू टाइम, सो ऑन एन एवरेज 7 to 8 minutes. Now since you have to run through this passage, there are no questions attached to it. I'll discuss the passage with you as to how to read the passage first, then we'll solve one passage from mock 1 जिसके अंदर questions दे रखे हैं. ठीक है जी. अच्छा, अब आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे 5 मिनट का टाइमर. दिस एग्जाम कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विदाउट अ टाइमर. आधी फाइट टाइम की है. ठीक है जी. 5 मिनट का लगाएं टाइमर. टी होने से पहले पहले go through the entire passage and then I'll tell you what all did you need to read, what all could you have skipped and what all questions can be asked. Read. Start कर दो अपनी अपनी पर्सनल, अभी आपके पास लेके आ करें डिस्कशन शुरू. ठीक है जी. Do you think you need to remember each and every sentence, word, para of this passage to solve any questions that may eventually pop up? I doubt. What is the Kavi trying to say in this? मतलब चाहता क्या है हमसे? For all India services, and then he is arguing his case out. यही है ना? So anything that the author, so now there are certain things that the author is going to agree with, and there are certain things that the author is going to disagree with, which are going to be outside of the paragraph given to you in the question. Anything that goes against the tone of this paragraph, the author is going to disagree with them, and anything that जो भी author की tone पे वापस चल रही हैं, the author is going to agree with them. ठीक है जी. ओके. अच्छा, अब मान लेते हैं इसके अंदर author है, कहते हैं author कहता है अगर hypothetically assume that there is a new service called the new IAS which doesn't follow any of the suggestions that the author has given. Do you think that the author will be inclined to believe कि ये बड़ी honest service है? I doubt it. Author के लिए by default सरकारी services have become obsolete and anyone in these services बोल नहीं रहा straight मुंह से, लेकिन कह रहा है marginally corrupt हैं. यही कह रहा है. जरा देखते हैं. The government has launched an Agnipath scheme for all India services. अच्छा, ये मैंने यूजली यहाँ से टाइटल मैं यूजली हटा देता हूँ, तो एक इस पे भी एक सवाल बन जाता है, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ दिस पैसेज. ऑल इंडिया सर्विसेज, लेट अस से ऑप्शन ए ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑप्शन बी द नीड फॉर अग्निपथ स्कीम फॉर IAS या IFS ऑफिसर्स, सी नो नीड टू रिफॉर्म द सर्विसेज, डी न्यू गवर्नमेंट न्यू एरा, बी because that is the main idea of the author. अगर हमें ये समझ में आ गया कि कवि क्या कहना चाहता है, कवि क्या कहना चाहता है भाई इसके अंदर, कि ये पुराने के लोग ख़राब हो गए हैं, ये पुराने लोग ख़राब हो गए हैं, इनके लिए भी अग्निपथ स्कीम बनाई जाए, यही कहना चाह रहा है नेट. ठीक है जी. अच्छा, आगे आते हैं. The AIS have rendered excellent services to the country despite, however, we have reached एक शब्द याद रख लेंगे. I'll just get my pen to it. However, इसको मार्क कर लो. ताने वहाँ पीछे बोर्ड का मार्कर दो. पीछे बोर्ड का मार्कर दो, या उस बोर्ड से उतार के दो, या ऑफिस में देखो मैंने कहीं रख दिया होगा, मैं आगे पीछे गया था. However का हिंदी ट्रांसलेशन क्या है? किंतु परंतु. Your child has very good intelligence. However, he or she is unwilling to work hard. नेट टीचर क्या कह रही है? इससे नहीं हो पाएगा. However, जब पैसेज में प्रकट हो, मीनिंग एक क्वेश्चन पॉपअप हो सकता है, जहाँ मिले एग्ज़ाम में ये शब्द, उसको कहीं पे हल्का सा मार्क आउट कर लेना. अच्छा, क्वेश्चन पेपर में यूजली वो कहते हैं मार्किंग अलाउड नहीं है, वहाँ इंस्ट्रक्शन होगा डू नॉट मार्क एनीथिंग इन द क्वेश्चन पेपर. एक डॉट लगा देना,
पार्ट ए थोड़े ना बैठ के पढ़ रहा है ये. However is a trigger word. Make a list of trigger words such as first and foremost is however. इस पैसेज में कहीं पे भी कोई उल्टा सीधा शब्द आए जो आपको एग्जैक्टली नहीं पता, उससे आप अपनी एक वोकैब की लिस्ट बनाएंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, सर्विसेज हैव एन इनबिल्ट टेंडेंसी टू प्रोलिफरेट. अब ये क्या करेगा, इसका सिनोनिम या एंटोनिम पूछ लेगा. Now can you predict कौन से सिनोनिम एंटोनिम पूछ सकता है एग्जाम में? No way on the planet. There is only one way to increase your vocab, which is any such words which are very fancy in nature that you think you know the meaning. You may just not. Write it down in a separate list. एक कॉपी सी छोटी सी बना लीजिए जिसके अंदर आप ये हमेशा लिखते रहेंगे. जब जब इन पैसेजेस में कोई शब्द ऐसा आए जिसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको नहीं पता, आपने क्या करना है, कुछ नहीं, गूगल पे जाना है अपने फ़ोन पे. अच्छा, एक लिस्ट मैं करा दूंगा जो हमारे तजुर्बे से आपका एग्ज़ाम्स में पूछते ही रहते हैं. ठीक है जी. अच्छा, प्रोलिफरेशन आ गया है जी, प्लोरीफरेट भी दे देता, एग्जैक्ट आ जाता. नहीं करना गूगल में हमें साइन इन. प्रोलिफरेट टू इंक्रीज क्विकली इन नंबर. मान लो यही एग्जैक्ट मीनिंग पूछ ले, हमें पढ़ते हुए लग रहा है प्रोलिफरेट पता होगा, क्या पता ना पता हो. और एंटोनिम क्या होगा, डिमिनिश, डिक्रीज. एक सिनोनिम लिख लेंगे, एक एंटोनिम लिख लेंगे, दैट्स इट. और एक मीनिंग लिख लेंगे अपनी किसी भी नोटबुक में, दैट्स ऑल. ठीक है जी, केवल इतना ही काम करना, प्रोलिफरेट. ठीक है जी. ओके, आगे चलते हैं. Anytime you spot a word, this is homework. In anything you read, vocab बढ़ाने का केवल एक तरीका, meaning one line, one antonym, one synonym. That's just it. Will do the trick. ठीक है जी. ओके. अच्छा जी. पहले ये प्रशंसा में जा रहा है. All India services have done this, this, that. However, we have reached a stage when radical rethinking is required. Why does the author say that radical rethinking is required? This is a standard question now because he will now give the reasons that he thinks why radical rethinking is required. This is one standard question that can be framed from this passage alone. Do you need to read this passage comma to comma, word to word, full stop to full stop? ऊपर ऊपर से पढ़ें और सीधा questions पे आ जाएं. पहली बात टाइम नहीं है, दूसरी बात एग्ज़ाम एंग्जाइटी है, तीसरी बात एग्ज़ाम की घड़ी चल रही है, टिक टॉक टिक. और उसके बाद हमें लग रहा है कि अच्छा इसके बारे में कवि क्या कहना चाह रहा है, दैट पीपल आर जनरली डिससैटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द पुलिस, देयर आर क्रेडिबल कंप्लेंट अबाउट. ऐसे कोई फिलॉसफी में जाने की टाइम नहीं है. पुलिस रियल लाइफ में जो करती हो ना करती हो मुझे कोई लेना देना नहीं है. मेरे लिए यहाँ पे एक ही भगवान है, उसका नाम है द ऑथर. ठीक है जी. आपके पास पैसेज नंबर 1 नहीं है, राइट? लेट क्यों आए, इतनी लेट क्यों हो गए, टाइम पर आ करो. ठीक है जी. पीछे से एक पैसेज ला के दो, एक प्रिंट ला के दो उनको. अच्छा, उनको पीछे पैसेज. अगली क्लास में ये बाहर यहाँ पे एक चेयर पे रख दो पहले ही. अच्छा जी. ठीक है जी. ओके. नाउ ही गिव्स मोर रीजंस. पहला तो कह दिया है पुलिस वालों को बदतमीजी कर दी इसने कि पुलिस बड़ी बेकार हो चुकी है जी, पुलिस इज एब्सोल्युटली. सेकंड क्या कह रहा है, देयर इज नो प्रेशर टू परफॉर्म, नो इंसेंटिव टू इनोवेट एंड नो डिजायर टू एक्सेल. टेक्निकली स्पीकिंग इज सेइंग देयरफॉर आई आर्ग्यू दैट एन अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ लाइक स्कीम इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज. राइट? ये क्या है, ये रीजनिंग है. कहाँ से शुरू हुई थी, हाउएवर से. ट्रिक, हाउएवर आ गया, रीजनिंग शुरू हो गई. ठीक है जी. अच्छा, क्या पूरे पूरे पैसेज के ब्रॉड आइडिया की नहीं, जो उस टाइम पे जो वो पॉइंट पकड़ रहा है ऑथर. ठीक है जी. सो हाउएवर देन बिकम्स अ वेरी यूजफुल वर्ड. therefore is he is concluding an idea. मान लेते हैं पूरे रीजन दे गया,
और एंड में कहता है देयरफॉर, ये इसमें कंक्लूड क्या करेगा? That is also one question. Which of the following, if true, will the author most agree with? Understood where the question is flowing from? Standard question है NLSAT का, 8 पैसेज में 8 बार पक्का पूछेंगे, 8 पैसेजेस में 8 बार ये पक्का आएगा, 8 बार एक और चीज रिपीट होगी. Which of the following the author will disagree with? अच्छा, तीसरी बात, which of the following if true would weaken the author's argument? Let us say that he's saying na, there is no pressure to perform, no incentive to innovate, and no desire to excel. According to a latest survey, newer generation of IAS officers want to perform and want to excel under any and all circumstances without any motivation whatsoever. This collapses the author's argument, right? The author is going, this will weaken the author's argument, and the author is also disagreeing with. net weaken और disagreement same question है, अलग अलग रंग रूप में. लॉजिक वही है, लॉजिक वही है, disagreement and weakening is pretty much the same. अच्छा, जो assumption जो दे रखी होगी, it will never be stated in the passage. अच्छा, what do you mean, what is an assumption? Are assumptions stated? Let us say that a student comes to you and says NLSAT is the bloodiest, toughest exam of the world. ऐसा क्या हुआ होगा इसके साथ जो ये बोल रहा है? क्या पता 2 बार अटेम्प्ट दे रहा हो और नहीं निकली सिलेक्शन, और एक बच्चा आपको आगे कह रहा है NLSAT का क्या हो ही जाता है, बेकार. क्या पता 1 शॉट में हो गया हो, और हमें क्या पता कौन सी कट ऑफ, कौन सी रिजर्वेशन लिस्ट में था. अभी एक दिल्ली जुडिशल सर्विसेज का एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है यूट्यूब पे. दीदी आ रही हैं, दीदी कह रहे हैं क्या पेपर बेकार, 2 महीने में, हमारे यहाँ 15 महीने लगते हैं तैयारी करने के, 12 से 15 महीना लगता है. वेरी ऑल दीज कोचिंग फोक्स आर मेकिंग फूल आउट ऑफ यू. आई प्रिपेयर्ड इन 2 months. ठीक है जी. मैडम SC कैटेगरी से थी, वो तो बताया नहीं क्योंकि वहाँ कट ऑफ लोअर है. अब अनरिजर्व्ड वाले देख के सोच रहे हैं, दीदी तो कह रही 2 महीने में, तुम कह रहे हो 15 महीने में. हटल लुटेरे चोर. जो उसकी जो पीछे की जो एजम्पशन है वो तो किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि वो मार्कशीट कट ऑफ लिस्ट वो तो हमें पता है ना कि क्या कह रही है. उसके सिलेक्शन में 430 पे, अनरिजर्व्ड फोक्स आर गेटिंग रिजेक्टेड एट 495 आउट ऑफ 850 पे, और वो 430 पे आके क्या कह रही हैं 2 महीने में निकलता है जी. एजम्पशन क्या है? शी फाउंड इट ईजी थैंक्स टू द रिजर्वेशन बेनिफिट दैट शी टुक, विच इज एब्सोल्युटली ओके. इफ इट इज अवेलेबल, यूज इट. Whatever benefit is available to you from the system, use it. It is there for a reason. If you get the opportunity, use it, because your competition is going to. At the end of the day, it's a competitive exam. It's not a morality का exam. I'm not saying that you go and cheat there. कि हाँ बोला था इन्होंने कुछ भी करो, चलो जी कुछ भी करा है और वहाँ पे एक्सपेल कर दिया उन्होंने. अच्छा जी, आगे चलते हैं. Meanwhile, the services continue to acquire flab. This is an expression or a phrase. What does this mean? To acquire flab. What is the author trying to say? What is the author trying to say? These services have acquired flab. Unnecessary staff is there. If you acquire flab, you will become slower, and flab is mostly unnecessary. Flab होता क्या है? देखते हैं. जो क्लियरली ना समझ में आए. अच्छा, दूसरी बात, यू आर फ्री टू इंटरप्ट मी एट एनी गिवन मोमेंट टू एक्वायर फ्लैब. तो मुझे बता देना, क्योंकि कभी कभार मुझे लगता है हाँ ये तो समझ में आ ही रहा होगा. अनवांटेड फैट इज फ्लैब. इफ यू एक्वायर अनवांटेड फैट, what do you mean happen? मतलब what do you think the author is trying to say here? The services has become bloated, meaning वहाँ more than necessary बंदे हैं. Understood? यही कह रहा है ना, क्वेश्चन बनेगा इस पे.
what do you think the author means when he or she says the author it is the services are required flab? पक्का बोलेगा वो. अच्छा, दूसरी बात, एक बात ये सोच के देखिएगा, आपको क्या लगता है एक्वायरिंग फ्लैब एग्जाम में आने वाला है? नहीं आएगा. अगर जन्म पत्री में अलाइनमेंट हुई, हमने यहाँ सुन लिया और वहाँ भी आ गया, तो आप भी जाके यूट्यूब पे बोल दीजिएगा पेपर बेकार है क्या है. इसे कहते हैं खुशकिस्मती. सही समय पे सही चीज़ मिल जाना ही खुशकिस्मती है. अगर अच्छा सही समय पे ना मिली तो सड़क तुम तब आई हो जब सारा गांव शहर जा चुका है. अब आ भी गई हो तो क्या, लेट अस से दैट यू गो टू द बेस्ट रेस्टोरेंट एवर, खाना दिए 2.5 घंटे बाद आफ्टर यू टेकन योर सीट. कह रहे क्या बदतमीजी. कह रहे लेकिन सर पास्ता खा के तो देखिए. कह रहे मुंह पे मारूंगा तेरे. अब दिल भराया, गुलाब जामुन दे, मैं जा रहा हूँ, है ना. देन यू विल एक्वायर फ्लैप. दिस इज़ वन ईडियम. ईडियम्स एंड फ्रेजेस की लिस्ट करनी है, करेंगे. एंटोनिम्स सिनोनिम्स की लिस्ट करनी है, करेंगे. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट करनी है, करेंगे. ठीक है जी, ओके. मूविंग फॉरवर्ड. नेट अभी तक ऑथर क्या कर रहा है? इसने सारी दुनिया के बहाने गिना दिए कि मुझे अग्निपथ स्कीम ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए चाहिए. ठीक है जी. अच्छा, लेट अस से नाउ ही इज आर्ग्यूइंग ऑन द बेसिस ऑफ डेटा. उत्तर प्रदेश टुडे हैज 14 ऑफिसर्स रैंक ऑफ डीजी, 42 रैंक, देयर वाज अ टाइम. इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल एक क्वेश्चन आएगा, इफ दिस डेटा टर्न्स आउट टू बी इनकरेक्ट what happens? The author's argument strengthens or weakens? It weakens, because he is basing his conclusions on this data. If this data is incorrect, author भैया की नैया तो डूब गई for sure. क्वेश्चन बनेगा, हमेशा बनेगा, हमेशा बनेगा. कह देगा अच्छा कंसिडर द फॉलोइंग डेटा एंड प्रिज्यूम इट टू बी ट्रू. नाउ व्हाट हैपेंस टू द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट और कंक्लूजन? Now there is a difference between arguments and conclusion. इसका मेन आर्ग्यूमेंट क्या है? ठीक है जी. एंड ही इज प्रोवाइडिंग यू रीजंस फॉर दैट आर्ग्यूमेंट, एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट ही इज गोइंग टू कंक्लूड बैक अगेन दैट वी नीड दिस. आर्ग्यूमेंट कंक्लूजन है बहुत सिमिलर. हल्के कभी कभार जहाँ पे लेंदी पैसेज हो जाता है वहाँ पे कंक्लूजन कुछ और कर देता है, मेन आर्ग्यूमेंट कुछ और कर रहा होता है. देखेंगे अलग अलग पैसेज की प्रैक्टिस कर करके. ठीक है जी, आगे चलें. अभी तक का पॉइंट सारा का सारा समझ में आ गया. तो बेसिकली नेट मोटा माटी ऊपर से पढ़े पैसेज. हाँ जी. क्या कौन चेंज करेगा? पक्का चेंज करेगा. अच्छा, और अगर इंक्रीज डिक्रीज हो गया, अगर यहाँ पे लेट अस से ये 42 इन द रैंक ऑफ एडिशनल डीजीपी अगर 42 के बजाय 84 हो गए या 95 हो गए, तो इट इज द सर्विसेज आर रिक्वायरिंग मोर फ्लैब. ऑथर और सही हो गया. लेकिन अगर ये डेटा ही रह गया तो ऑथर तो गया. ऑथर की बेसिकली आर्ग्यूमेंट गई, है कि नहीं. ठीक है जी. अच्छा, आगे चलते हैं. कह रहा है द AIS have become very top heavy. In fact, there are a number of officers who are holding top positions but have very little work to do. This makes them frustrated. As a result, many of them are politicking most of the time with a view to getting a top post. So technically speaking, again he's crying about कि why do we need to reform this entire thing. Okay, आगे चलते हैं. अच्छा जी, ये भी यहाँ पे भी ये अब ये आ गया अंडर दीज सर्कमस्टांसेस. विच सर्कमस्टांसेस? कह रहा है जो अभी लिस्ट बना के दी तुम्हें बुलेट पॉइंट में नहीं लिख रहा. क्यों? अखबार वाले पैसे नहीं देंगे, कोई पढ़ेगा नहीं. करे क्या 8th ग्रेडर ऐसे लिखे हो तुम, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो बनाओ. इसीलिए आपके एग्जाम में ऐसे ही कोई पैसेज प्रकट होगा. लुक्स वेरी लेंदी कि अरे बाप रे क्या क्या लिख दिया, लेकिन हाउएवर इज़ वेरी रीडेबल. ठीक है जी. अच्छा, आगे चलते हैं. द GOI शुड थिंक ऑफ एन अग्निपथ स्कीम. अब कह रहा है, सजेशन दे रहा है कि ये स्कीम तो इम्प्लीमेंट करना, अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना, क्या क्या दिमाग में रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेशन दे रहा है. सजेशन पे डायरेक्ट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्टाइल क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द ऑथर सजेशन. सजेशन कंक्लूजन से अलग है, बच के रहेंगे. ठीक है जी. ओके. अच्छा जी.
अब लास्ट लाइन पे आएंगे. देयर वुड बी फियर्स रेजिस्टेंस टू दिस स्कीम फ्रॉम विद इन द एआईएस. द सर्विस हाउएवर नीड अ शेक अप. द ऑफिसर डिजर्व्स एन इंजेक्शन ऑफ अग्नि. फ्रेज आ गया. एन इंजेक्शन ऑफ अग्नि. व्हाट डज द ऑथर मीन बाय दैट? कि जगाओ इनको, सो गए सुस्त. दे आर वेरी सिक्योर इन देयर जॉब्स. दे आर करप्ट. पब्लिक इज टायर्ड ऑफ पुलिस. Basically, he is very against the system. Now presume that in the question that they say that there is a country in which the system is working beautifully. That breaks apart the author's argument. The author will disagree with it and it will weaken the author's argument. If there is a country with a replica of the All India services and it is working very beautifully, that will go against the author. Do you understand what is happening here? There would be fierce resistance to this scheme. इस पे स्टैंडर्ड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन आ जाएगा. व्हाई डू यू थिंक द ऑथर इज सेइंग दैट देयर वुड बी फियर्स रेजिस्टेंस? ऑप्शन ए, ऑफिसर्स आर वेरी मोटिवेटेड टू गेट मोर प्रमोशंस. ऑप्शन बी, द ऑल इंडिया सर्विसेज हैज बिकम एंटिक्वेटेड. ऑप्शन सी, ऑफिसर्स आर वेरी कंफर्टेबल वेयर दे आर इन देयर पोजीशन. ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. सी. डू यू अंडरस्टैंड? यही है एग्जाम. पूरा पार्ट ए ही यही है. अब फिर से फ़ोन निकालिए. कह रहे हैं फिर से फ़ोन निकालिए. जी हाँ, फिर से फ़ोन निकालिए. अब इसमें टाइमर लगाइए 8 मिनट का. कितना? 8 मिनट, 8 मिनट्स. मॉक 1 का पैसेज खोलिए ए. और अब आप क्या करेंगे? साथ में निकालिए OMR शीट जो दी गई है. आज से ही OMR शीट में आप प्रैक्टिस करेंगे. क्यों? ये एक बबल ऊपर नीचे हुआ, 1 साल गया. दिस इज ऑलमोस्ट टाइंग वो शर्ट के बटन नहीं हो जाते कभी कभार, ऐसे करते करते करिए ये क्या हुआ, सारी सीक्वेंस बिगड़ गई. आई नो ऑफ रियल लाइफ केसेस, वेरी स्टूडेंट्स विद इमेंस पोटेंशियल. एग्जाम एंजाइटी में बबल ऊपर नीचे, अगर एक भी ऊपर नीचे हुआ, गेस व्हाट हैपेंस? एग्जाम एंजाइटी प्रेशर में तो दूसरा, यू विल ऑफ कोर्स, लाइक फॉर एग्जांपल यू वांटेड टू मार्क अप 1 का D, बट यू लेट अस से मार्क्ड इट इन 2. नेक्स्ट टाइम, अब आपके पास इतना तो टाइम है नहीं वहाँ पे आपकी, फटाफट यू आर शफलिंग बैक एंड फोर्थ, राइट? अच्छा, अगला आंसर आपने लगाना था 2 का B, यू मार्क्ड 3 का B, एंड गेस व्हाट हैपेंस? एंड देन गेस व्हाट हैपेंस? फोल्डर में नहीं थी? ये लो. अच्छा, सिर्फ मॉक निकला है, कोई बात नहीं. तो क्या हुआ? 2 का B मार्क करना था, मार्क कर दिया. 3 का B. 1 का D मार्क करना था, मार्क कर दिया. 2 का D. चाहे आंसर सारे अच्छे करेक्ट हो, OMR मशीन को जाके कौन समझाएंगे कि भैया हम गलती कर दिए हैं? हो गया कि भाई साहब हो गया आपका पूरा का पूरा काम, आपकी हो गई राम नाम सत्य पेपर की. पार्ट ए की तो पक्का. और अगर पार्ट ए की हो गई तो पार्ट बी तो चेक ही नहीं होना. कह रहे सर हम क्या ऐसे लिख कर आए हैं? कह रहे प्रभु पार्ट ए तो चेक ही नहीं हुआ तुम्हारा. OMR शीट हो जाइए शुरू 8 मिनट में. जाने दो क्वेश्चन गलत. अच्छा, जो करंट अफेयर क्वेश्चन है वी डोंट केयर अबाउट दैट, वी डोंट केयर. जाने दो क्वेश्चन गलत. आई डोंट केयर वेदर दे आर, यू गेट देम इनकरेक्ट. यू गेट एज मेनी इनकरेक्ट हेयर इन दिस रूम. NLU दिल्ली में नहीं, आपका सेंटर पड़ेगा NLU दिल्ली. On the 21st of April, you will be sitting in NLU Delhi at 10 o'clock in the morning. Before that, before you reach that stage, make as many errors as you want to यहाँ पे. ठीक है जी, सॉल्व करिए. 8 मिनट फ़ोन में टाइम लगा. और सुनिएगा, 8वें मिनट तक जितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं बस उतने ही ठीक हैं. उसके बाद छोड़ दीजिएगा देखने के लिए कि मैं कितने पानी में हूँ. ठीक है जी, करिए शुरू. पैसेज ए सबसे पहला. कोई मॉक बी मत खोल लेना, एज इन मॉक 2 मत खोल लेना.
ये वाला पैसेज है माई वर्क एज अ जर्नलिस्ट, जस्ट इन केस एनी वन कन्फ्यूज। हो गया जी मेजॉरिटी। ये जब तक बैच चलता रहेगा ऐसी आवाज़ आती रहेंगी, क्योंकि टाइमर के बिना ये बैच चलता नहीं है। कितने क्वेश्चंस करे, वर यू एबल टू डू देम ऑल? ठीक है जी। आई डोंट केयर अबाउट द करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, वी डोंट केयर, क्योंकि वो अब आउटडेटेड हो चुके हैं। पिछले साल के थे, दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग दीज मॉक्स एज स्टडी मटीरियल हियर। ठीक है जी। क्या कहना चाह रहा है ऑथर? ऑथर भैया क्या कहना चाह रहे हैं? कि मुझे इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक रिलीजन से जर्नलिस्ट था। मुझे इसलिए पकड़ा गया क्योंकि मैं जर्नलिस्ट था एक स्पेसिफिक स्टेट से और कुछ हरकतें कर रहा था। ठीक है जी, इतना ही कह रहा है ऑथर। लेफ्ट लीनिंग यूनिवर्सिटी है, सरकार विरोधी आर्टिकल आएंगे ही आएंगे। एक आएगा औरतें पीड़ा में हैं, ऑन फेमिनिज्म, पेट्रियार्की ऑफ सोसाइटी। ठीक है जी। एक मोदी जी गधे हैं। 2 थर्ड इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज या कोई ऐसा कोई इम्पोर्टेंट इशू। तीसरा किसी किताब में से आएगा रैंडम एब्स्ट्रैक्ट लाइक रैंडम जिब्रिश। ठीक है जी। इसी टोन पे ये पूरा पेपर सेट आउट होता है। आप क्वेश्चन पेपर स्टडी करके खुद भी यही कंक्लूजन निकाल लेंगे। ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं। नाउ वील टॉक ऑन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ऑथर्स कंक्लूजन इन द पैसेज। ऑथर्स कंक्लूजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट। ये शब्द ध्यान रखिएगा, मोस्ट एक्यूरेट मीनिंग देयर कैन बी एन ऑप्शन which will be correct as well as to the in parallel to the correct option, the most correct option. You have to choose the better out of both. देखिए, 2 तो होंगे जिनको हम कहते हैं कूड़ेदान ऑप्शन। उठाइए, ट्रैश कैन में डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम whatsoever. 2 options however are going to be very very closely matched. उनमें से जो बेटर लगे और आपका गट आपको बता देगा कि कौन सा बेटर है। गो विद योर गट। इवेंचुअली आपने ज़िंदगी में भी नोट करा होगा कि मुझे पता था ऐसा होता। पता मोस्टली आपके अंतरात्मा को सब है। इट इज़ जस्ट दैट आपको अपने पे भी आत्मविश्वास नहीं है, थैंक्स टू 2 थिंग्स। एक, अभी आप छोटे हैं, यू आर नॉट डम्ब एट ऑल, नोबडी लेट नो वन टेल यू दैट। एज एन व्हेन यू ग्रो अप, you will keep on gaining more and more experience, you will keep on becoming more and more confident. B, parents, हमारा थोड़ा पेरेंटिंग स्टाइल हमारे देश का ऐसा है थोड़ा सा कि आदमी अपने ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा के बैठ रखा होता है कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि पेरेंट्स शुरू से कहता है तू दुनिया का सबसे बड़ा गधा है, हमने पैदा करके तेरे को गलती कर दी। नहीं होता तो आदमी को खुद पे डाउट आने शुरू हो जाते हैं। और हमारे गोरे काउंटर पार्ट क्या कर रहे होते हैं 18 पे, कहते हैं आउट ऑफ द हाउस, सर्वाइव ऑन योर ओन। उसमें भी काफ़ी गलतियां, देयर आर प्रोज एंड कॉन्स टू बोथ दी सिस्टम्स। हाउएवर हमारे वाले में इफ़ यू नोटिस फॉरेनर्स आर मच मोर एक्सट्रोवर्टेड एंड कॉन्फिडेंट इवन व्हेन दे आर ट्रैवलिंग। और हम भाई कुछ जुगाड़ करा दे भाई, वो जाके वहाँ कूद रहा होता है। यूट्यूब पे एंडलेस व्लॉग्स हैं। हाउ कम दे आर एंड दे आर व्हाट 20-21 ईयर ओल्ड्स, हाउ कम दे आर सो ब्लडी। कोई कोलंबिया में घूम रहा है, कोई गुंडों के इलाकों में घूम रहा है। हमारे यहाँ घर कैसे नहीं पहुंचा तू, 8 बज गए, 500 फोन, 501 वे पे FIR मिसिंग, हमारा बच्चा गुम गया। बेस्ड ऑन द ऑथर्स कंक्लूजन द पैसेज ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट। ऑल जर्नलिस्ट विद अपोजिंग व्यूज आर रेगुलरली अरेस्टेड बाय द स्टेट। नो, अच्छा, this may generally be true. We don't care. We have to stick to the information provided in the passage. ठीक है जी, okay. Some journalists have close links with politicians. This can be generally true. However, does it have any remote connection with the passage? I seriously doubt this. There is absolute freedom of speech in India. मैं कह रहा भाई साहब हो भी हो तो भी मैं क्या करूं? Journalists can be targeted based on their origin state. Yes, this is what the author is technically saying. Actually speaking, तो ये
एक लाइन पे क्वेश्चन है पूरे पैसेज में. मेरी एक स्टूडेंट थी, नो सर आई कैन नॉट सर्वाइव, यू नो, आई हाउ डू आई नॉट रीड द पैसेज इन एंड आउट एंड एटलीस्ट ट्वाइस. मैं कहा मैडम सुनो, तुम जाओ DU, ये तो ना निकलेगा. आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको एक बार ही पढ़ के पैसेज से दिमाग में नहीं आया कि इसका क्या आंसर है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज अ लॉलीपॉप क्वेश्चन. यू गेट दीज इनकरेक्ट, दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम बड़ी. एक सीट पे 10 लोग लड़ रहे हैं, 9 तो पक्का करेक्ट करके आ रहे होंगे, और अगर वो 10वां आप हुए, यू आर ऑलरेडी बिगिनिंग आउट विद अ नेगेटिव. नहीं काम करना ऐसे आसान क्वेश्चन. अच्छा आपने ये तो बड़ा आसान था. हाँ एग्ज़ाम लेवल है. मेरा खुला चैलेंज है, 22 का क्वेश्चन पेपर आपके पास है, खोल लीजिएगा, इसको 1 to 1 रख लीजिएगा. मेरे ही बनाए हुए हैं, ये किसी किताब में नहीं है. ये पैसेज मैंने ही चूज़ करा था, मैंने ही बनाया था पिछले साल. आप 22 का क्वेश्चन पेपर साथ में रख लीजिए, एग्जैक्ट इसी लेवल का क्वेश्चन इसी लैंग्वेज के साथ आपको मिल जाएगा. ऑफ कोर्स दैट पैसेज इज गोइंग टू बी डिफरेंट, द कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी 1 to 1 द सेम. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ इनसाइटेड एज यूज्ड इन द पैसेज. इफ़ यू डोंट नो दिस, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी कॉपी में इनसाइटेड लिख लीजिएगा. कह रहा है इनकरेज, गोडिंग, स्टिमुलस, डैम्पन. लेट अस सी व्हाट इनसाइटेड रियली मीन्स. इनसाइटेड मतलब आग लगाना, राइट? टू इनकरेज, राइट? टू इनकरेज, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इनसाइट? अबेट, फोमेंट, इंस्टिगेट, दैट इज इनसाइटिंग. यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? इनकरेज, गोडिंग, स्टिमुलस, डैम्पन. अच्छा मुझे मान लो मुझे ये नहीं पता कि ये गोडिंग क्या होती है, नहीं पता मुझे भी नहीं पता. मैंने भी एम ही पता नहीं कौन सा शब्द मिला, अगर डाल दे भाई, कोई बात नहीं. डैम्पन डायरेक्ट ऑपोजिट है, मार्क कर दे भैया. डैम्पन ही है इसका आंसर. ठीक है जी. इनसाइट मतलब आग लगाना, डैम्पन समवन स्पिरिट्स मतलब बेचारे को जाके डिस्करेज कर देना. ठीक है जी, अंडरस्टूड. ओके आगे चलते हैं. नाउ जी, there is no such golden rule as such. You will have to use POE, which is process of elimination. C eliminated, B eliminated, A eliminated, answer becomes D. Play KBC. Critical reasoning में usually half of the job is POE. 2 ऑप्शन तो पक्का उठा के बाहर फेंक दो, they are generically true outside of the passage. That outside of the passage का author से कोई लेना देना नहीं. Author will make his own arguments. ठीक है जी. अच्छा, now this question, this style of question was not asked in 23 का पेपर. However, it was there in 22 का पेपर. God only knows what they do in 24 का पेपर. Be mentally prepared. Okay. This is your principal fact वाली राम कहानी. Let us say that this passage, this very question was given without the passage. Could you have solved it? Absolutely yes. जो पूरा पैसेज दे रखा है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है. जस्ट दैट इट इज़ ऑन द थीम ऑफ द पैसेज, दैट इज अबाउट इट. ठीक है जी. क्या कहता है? एज्यूम दैट अ हाइपोथेटिकल कंट्री हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंक्लूड्स प्रोविजन दैट एलोकेट द पावर टू डील विद वेरियस मैटर्स अमंग्स द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस ऑफ द स्टेट. हिंदुस्तान में एग्जीक्यूटिव कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री. ठीक है जी. लेजिस्लेचर कौन है? लोकसभा या पार्लियामेंट. जुडिशियल तो जुडिशरी हो गए. ऐसे 3 डिपार्टमेंट भागे, ये आप कह सकते हैं कि बंटे हुए हैं डिफरेंट भागों में, कि तुम ये वाला काम करोगे, तुम वो वाला काम करोगे, तीसरा तुम वो वाला काम करोगे. जज साहब को मिनिस्टर बनने का शौक है, मिनिस्टर को जज साहब बनने का शौक है. सारे लोग इसीलिए वो कहते हैं भाई थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा अलग अलग रहने की कोशिश करना. आर्टिकल 50 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम ट्राई करेंगे. हो नहीं पाता. नहीं तो दिल्ली हाई कोर्ट कैसे डिसाइड कर सकता है कि किसी स्कूल में कितनी फ़ीस होनी चाहिए? अरे जज साहब आप मिनिस्टर का काम कर रहे हैं, कभी कभार जज साहब करते हैं, और मिनिस्टर साहब जज का काम कर जाते हैं. टेक्निकली एकेडमिकली नॉट अलाउड है, रियलिस्टिकली आए दिन होता है. कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाइएस्ट लॉ ऑफ द लैंड एंड ऑल स्टेट अथॉरिटीज मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स that the legislature has the sole authority and discretion to make new laws, okay, and the judiciary has the power to resolve disputes according to the law, in the course of doing which it may
ऑल्सो इंटरप्रेट द लॉज एंड पेनलाइज द लेजिस्लेचर फॉर मिसयूजिंग लॉज। इसने तो कहीं बोला ही नहीं कि जुडिशरी के पास पावर है टू मेक न्यू लॉज। ये आपकी भगवद गीता, बाइबल, कुरान है इस क्वेश्चन के लिए, आप इससे बाहर नहीं जा सकते। वो कह रहे अच्छा तुमने, लेकिन मैं तो सुना तुम CUET PG की भी तैयारी कर रहे थे, तो इसका मतलब तुमने बैराक भी पढ़ी है। नहीं पढ़नी थी। वो है ना मीम, वो पायलट वो कह रहे बटन दबाओ, कह रहे नहीं दबाना था, वो प्लेन क्रैश करा रहा होता वो ऊपर, पता नहीं वो कौन सा, वो चिंटू लाल है, वो कौआ बिरयानी वाला एक्टर, वो कह रहे नहीं दबाना था, कह रहे वहाँ पे वो लाल बटन दबा गए, कह रहे दबा दिया, कह रहे नहीं दबाना था। ठीक है जी। अच्छा जी, शिवांगी लाल मेरी स्टूडेंट है, CLC में है। अ जर्नलिस्ट सफर्ड इकोनॉमिक हार्डशिप व्हेन शी वाज अरेस्टेड बिकॉज ऑफ सस्पेक्ट मटेरियल फाउंड ऑन हर लैपटॉप। ठीक है जी। इंस्टाग्राम पे भी देवी जी की रील बड़ी वायरल हो जाती है, क्या बोलते हैं, पोएट है, ऐसी थोड़ी लेफ्ट लीनिंग महिला थी, थोड़ी रिबेलियस टाइप की, सर आपने कैसे बोल दिया, ठीक है बहन बोल दिया तो बोल दिया, क्या करें। शी अप्रोचेज द कोर्ट आफ्टर शी इज आउट, होना चाहिए वो आर ऑन बेल हो गया, आउट ऑन बेल, एंड आर्ग्यूज that it is the state's responsibility to not harass journalists based on mere suspicions. Correct है? Okay जी. The legislature must, she argues, pass a law detailing bail conditions and comprehensive mechanism exclusive for journalists who have suffered economic distress as a result of arbitrary arrests. Theme वही है passage की, technically speaking situation वही है. She also seeks compensation for arbitrary arrest. Which of the following would be most accurate in this context? ठीक है जी. The court can order the legislature to pass such a law since the protection of journalists is critical. If the legislature does not act by itself in such important matters, the judiciary can step in and force the legislature to do so. भाई साहब क्यों, क्या था यहाँ पर, ये कैसे कराओगे तुम, नहीं हो सकता. दूसरा, the court cannot order the legislature to pass such a law since new laws cannot be passed on the request of a single individual. Shivangi should gather more suffering journalists and approach the court again. ये भी नहीं होगा, कह रहे लेकिन ये हो सकता था. जनरली स्पीकिंग ट्रू आउटसाइड ऑफ द क्वेश्चन. अगर रियल लाइफ सिचुएशन होती तो वो कहता है मुझे तुम्हारा अंदर का हरीश साल्वे चाहिए ही नहीं, इसको रखो तुम दूर और चौथी बार जाके करो शादी, कोई प्रॉब्लम नहीं, सालवे जी की हुई है अभी अभी. ठीक है जी. चलो आउट. क्यों, क्योंकि यहाँ नहीं लिखा पूर्ण विराम, इस पर कोई डिबेट हो नहीं सकता. इनफैक्ट लॉ भी पूरा लॉ, एज अ जज यू आर बाउंड बाय द ब्लडी बेयर एक्ट. नोबडी यूज्ड टू टीच बाय बेयर एक्ट्स इन DULLB और CUET. हम लोग आए थे और सीधा बेयर एक्ट पकड़ा दी पूरी दुनिया को कि बेयर एक्ट से कर ले. अकेडमीज़ क्या करती हैं, यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो पुल आउट कर लेती है बेयर एक्ट से, अपना नाम लगाती है और दे देती है. मैं कहता हूँ इतना एफर्ट करने की ज़रूरत है क्या, 300 रुपये की मिलती है, तू दे दे, मैं आगे पकड़ा देता हूँ. कॉलेज फेंकना मत, कॉलेज में यही पढ़नी है. अच्छा वो वहाँ पे वो पीले रंग की लेके घूम रहे होते हैं यूनिवर्सल वाली, हमने लॉ एंड जस्टिस की खरीदी कि उसमें थोड़े MCQ दे रखे होते हैं फ्रंट और बैक पे. बेयर एक्ट ही यूज़ करनी है. लॉ इज टेक्निकली स्पीकिंग बेयर एक्ट्स. This is the Bear Act for this question, not your own mind, not the kitab that has been given to you. C. The court can pass order to provide compensation from the state to Shivangi, but cannot order the state to pass a new dedicated legislation as it would be beyond its own power. ठीक ठीक लग रहा है, लेकिन कभी भी आंसर कंफर्म मत करिएगा लास्ट वाला ऑप्शन भी पढ़कर, अगर C है तो. D. The court can suggest to the legislature to enact a new law dedicated exclusively to the protection of journalists. है तो डी भी ठीक, सी बेटर है. ठीक है जी, सी बेटर है. सी इंक्लूड्स मच मोर रीजनिंग एंड रीजनिंग दैट क्लोजली रिजेंबल्स द एक्चुअल बेयर एक्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट वाज गिवन टू यू. ठीक है जी. सी और डी में निर्णय करने से पहले AILET किसी ने दिया था NLU दिल्ली में, कभी दिया होगा. ठीक है जी. उसमें आते थे 1.5 पेज के प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चन. उसमें एक ट्रिक होती थी, मैं तो अब पढ़ाना छोड़ दिया उन छोटे एग्जाम्स के लिए. जिस भी ऑप्शन में सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल रिपीट हो रहा है वही आंसर है सदा 99% एक्यूरेसी के साथ. मेरा दुनिया का एज एन कोचिंग का सबसे पहला स्टूडेंट NLU दिल्ली पहुंचा था इसी ट्रिक को लगा कर पूरे पेपर में.
जय हो प्रभु। उसके बाद हमने पढ़ाना ही छोड़ दिया। मेरे जी क्यों पढ़ाना छोड़ दिया? सिर्फ एक ही कारण है, ए टू ईजी, बी 17 साल का बच्चा कहता है आई वॉन्ट टू बी द नेक्स्ट CGI ऑफ इंडिया। मैं किसी का सपना क्यों तोड़ूं? उनके सपने होते हैं, अरे सर ऐसे वैसे कर देंगे ये वो। मैं छोटू नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जरा बाहर जाके तो देखो। आपको क्या लगता है कॉलेजियम सिस्टम तो बैठ ही रखा है कि सिंह साहब आएंगे, सिंह साहब दी ग्रेट, क्लैट निकाल कर आए हैं वगैरह। तुम्हारे से 15,000 और है हर साल। और जो पिछले वाले मेट्रो पकड़े कभी राजीव चौक से शाम को 6 बजे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बस वही है। और अगर जब फुल होती है ना, जब दरवाज़ा बंद हो रहा होता है, बाहर के आपके भाई बंधु ह्यूमन राइट्स वहीं ख़त्म हो जाते हैं। कह रहे दरवाज़ा बंद करा, मेरे को भेज इस डब्बे से। यही होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी या रियल लाइफ में भी, जॉब प्लेसमेंट सीन में भी यही है कि भाई तू जा, मेरे को मिल गया, थैंक्स, हमारा तो हो गया। ठीक है जी। UAPA was enacted in which year? This is a static GK का question. Now this is very passage specific. If you didn't know this, it is absolutely okay. No worries. अच्छा तो क्या रट ले? नहीं करना। ये मॉक, और ये वो क्वेश्चन है जो मैं ज़बरदस्ती मज़े ले रहा हूँ कि अब क्या पूछें, और मैं नहीं चाहता कि आप करें ऐसा। एक आध एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप करें, लेकिन इस एग्ज़ाम में अटेम्प्ट सब कुछ करना है, क्योंकि ना करने का भी नेगेटिव है। DU में ऐसा नहीं है। यहाँ ना भैया, अगर ना करने का भी नेगेटिव है तो कर ही लेते हैं। आंसर वैसे आई थिंक 1967 है इसका, लेकिन कर ही लेते हैं। नेगेटिव तो वैसे भी मिलना ही है, और बाय चांस कहीं राहु केतु अच्छा हो गया, आ गए +1। स्ट्रैटेजी वीडियो बनाए जोश टॉक पे, हाउ आई मेड इट इन लाइफ। ठीक है जी, तो मैं भी चेक कर लूँ। हाँ 1967 ही है भाई। ठीक है जी। अच्छा फिर आते हैं, कहता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज which of the following best explains why the author prevented his family to come meet him in jail? इसने एक जगह पे बोला था कि I also know prevented my family. कहता है he was afraid that they too will get arrested under the UAPA. अच्छा जी, he was afraid that as he was, that नहीं होना चाहिए, he was afraid as he was under state surveillance. Was he really afraid of this? He wanted to remain in isolation and contemplate on life. कहना हटाओ। He saw someone in jail in a similar situation as his, whose family was arrested. Right? This was the reason. अच्छा, ये हो सकता है, ये बेटर है as per the passage. पैसेज में ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड ही है, यही है ना। 10वीं कक्षा का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लेवल का क्वेश्चन है। गेट दिस इनकरेक्ट इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू आर डेड and buried right there, because your competition is certainly not going to get this incorrect. ठीक है जी, okay. What is the name of investigating research and that were recently reported on the Adani Group? ये तो हिंडनबर्ग था, पिछले साल का क्वेश्चन था, आने के बहुत चांस से नहीं आया। आपको लगता है CVT PG में कभी पूछ लेगा हिंडनबर्ग पे एक भी क्वेश्चन? सरकार के खिलाफ किसी ने रिपोर्ट, कह रहे सरकार नहीं, अडानी अंबानी सरकारी हैं, उनके खिलाफ छपा, उन्हीं के विश्वविद्यालय में प्रश्न पूछा जाएगा। क्या बातें कर रहे हैं, ये पूछेंगे, पक्का पूछेंगे NL SAT वाले। वो कहते हैं हम नहीं डरते, क्यों? कह रहे हम किसी के बाप का थोड़े ना खाया है, हम तो पूछेंगे, पूछ ले। वो एक वो टीचर था, लॉ टीचर, अभी उसने वो थोड़ा सा वो कहा पढ़े लिखे लोगों को वोट किया करो, उसको अनअकैडमी ने निकाल ही दिया है ना जी। अच्छा मान लो वो ना काम कर रहा होता अनअकैडमी के यहाँ, क्या कर लेते? कुछ भी नहीं। मैक्स क्या होता, अगर कोई सरकार में कोई खुंदक खा ले तो इवेंचुअली आके पकड़ जाएगा। ठीक है जी। हाउएवर अनअकैडमी से नौकरी से तो कोई नहीं निकाल सकता हमारा, हम काम करते ही नहीं किसी के अंडर। अरे जो करना कर ले, जो बोलना बोलेंगे। अच्छा, और कभी भी आप ज़िंदगी में, इवन इन लॉयरिंग, सारी सरकारें अच्छी हैं और सारी सरकारें बुरी हैं, कभी भी फिजूल के डिबेट में नहीं जाएंगे। हर सरकार ने कुछ अच्छे काम करे, हर सरकार कुछ बुरे काम करती है,
एक्चुअल काम आईएएस अफसर करते हैं, नेता सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं। ये देश ब्यूरोक्रेसी का देश है, यहाँ ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट एफिलिएटेड टू एनी पार्टी, नीचे वाले काम करते हैं। विमेंस रिजर्वेशन बिल अभी से 4 बार पहले इंट्रोड्यूस हो चुका है, जस्ट पास नहीं करा पा रहे थे। इस बार ही सब खुले सांड की तरह बैठे हैं, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, लोकसभा ने पास कर दिया है, इम्प्लीमेंटेशन 2035 तक भी नहीं होगी शायद। तो कह रहे इनको अभी मौत क्या पड़ी थी ये कराने की। 24 में इलेक्शन है, क्या बोलेंगे जाकर, क्या बोलेंगे जाकर। हमारा वोट भी किसको जाना है, ना राहुल गांधी को जाएगा, ना केजरीवाल को जाएगा, और ममता जी को भी नहीं जाएगा, जाएगा तो मोदी जी को। लेकिन क्या मोदी जी दूध के दूल्हे हैं, ऐसा भी नहीं है कोई भी सरकार। सो 50 शेड्स ऑफ ग्रे, द वर्ल्ड इज नॉट ब्लैक और वाइट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन दिस, एवरीवन इज कंसर्न्ड अबाउट अर्निंग देयर लिविंग एंड गोइंग होम। इफ यू वांट टू गो वायरल ऑन सोशल मीडिया, guess what you have to do, only 2 things, find an audience, अगर वो मोदी सपोर्टर हैं तो उनको मोदी जी के गाने गाना शुरू कर दीजिए, और अगर वो मोदी विरोधी हैं तो मोदी जी को गाली देनी शुरू कर दीजिए, और अगर दोनों काम नहीं करने, कपड़े उतार दीजिए। जनरल पर्पस कंटेंट बनाएंगे तो नहीं बिकेगा, कौन सुनने आ रहा है, क्योंकि ना बाबाओं की कमी है, ना फाइनेंस, ना फिनटेक इन्फ्लुएंसरों की कमी है, ना स्टैंड अप कॉमेडियन की कमी है। वो कौन था, मुनव्वर फारूकी। ऐसी कंट्रोवर्शियल बयान दे दो कि हर जगह आग लग जाए, थोड़े दिन जेल में, लेकिन मेरी ज़ुबान पे तो नाम आ गया उसका, मैं तो जानता भी नहीं था को कौन है। इन लोगों को पता है एग्जैक्टली व्हाट दे आर अप टू, और टाइम किसका वेस्ट हो रहा है, मिले सुर मेरा तुम्हारा। ना पेपर निकल रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स पे बहुत ज्ञान है। राठी जी को एग्जैक्टली पता है कि उन्हें कंटेंट किसको बेचना है, और वो वही बना रहे हैं। आपका कमरा भी वही होता था, ठीक है जी। अच्छा, और इनके जो सपोर्टर वाले हैं उनको भी एग्जैक्टली पता। बॉलीवुड को आजकल पता है कि क्या बिक रहा है, भगवान का सामान। कौन सी पिक्चर आई थी ये रणबीर कपूर वाली, ब्रह्मास्त्र। अच्छा, उसके बाद रामायण आ रही, बाहुबली ये 5-7 साल पहले तो नहीं ऐसी फिल्में आती थी। दे नो एग्जैक्टली व्हाट इज सेलिंग, दे आर सेलिंग इट, एंड डू यू थिंक दे केयर? दे डोंट केयर, दे डोंट केयर एट ऑल। डू यू थिंक यू शुड केयर? नो, वो अपना बिजनेस चला रहे हैं, हम अपना बिजनेस चलाएंगे। हमारा बिजनेस इस टाइम क्या, पढ़ के सीट निकालना, पूर्ण विराम। हम कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कोई आपका दोस्त आपके पीछे पड़ जाए, आजा डिबेट करेंगे, वो उसको बोलो यू आर राइट, कह रहा 2+2 5, यू आर राइट, पहले मैं सीट निकाल लूँ, बाद में ज़रूर आके बात करेंगे। हमारा एक स्टूडेंट है, वो क्या बोलते हैं, हर रोज़ ब्लॉक, राइट विंग सपोर्टर, एक्सट्रीम राइट विंग सपोर्टर। मैं क्या सुन, NLS में बैठा हुआ है इसने। मैं क्या पहले तो इसको कर बंद, सीट आएगी ना, अंदर जाकर जितनी लड़ाई मारकाट करनी कर ली, उससे पहले ये तमाशा कर बंद। अब अंदर बैठ रखे हैं सर, जो उसने जो मर्जी डिबेट करना कर लो, अब तो लेजिटिमेटली अंदर आ गए, अब कुछ नहीं। लेकिन पहले अगर ट्विटर पे अगर उसकी बहुत ग्रैंड फॉलोइंग हुई और वहाँ का प्रोफेसर, और अगर इंटरव्यू स्टेज पे निकाल दिया जानबूझ के, 2022 की बात बता रहा हूँ, रियल लाइफ केस, कह रहे शांति बना रखें, पहले अपना फ़ायदा कराएं, फिर आगे बढ़ें। वो कह रहे जी ये तो नहीं, ये तो गलत बात नहीं है। ये देखो विमेंस रिजर्वेशन बिल, 24 का इलेक्शन आ गया, आ जाओ। इसका इफेक्ट ऑन ग्राउंड क्या है, 0। कल वहाँ वो फीमेल सेलिब्रिटीज़ भी खड़ी थी, वो ईशा गुप्ता और पता नहीं कौन कौन वहाँ पे पहुँची हुई थी, वो शहनाज गिल बिग बॉस वाली, ये पार्लियामेंट पहुँच रखी हैं। बोलना इनको आता नहीं है, क्यों पहुँच रखी हैं, प्रचार करना, एडवर्टाइजमेंट चल रही है जी। तो कोई बात नहीं, अच्छी तरह इनको एडवर्टाइजमेंट करा दो। अच्छा, अभी क्या होगा, फरवरी बजट में, अप्रैल में चुनाव है, क्या होगा, इनकम टैक्स थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा। डू यू रिमेंबर 2021 अप्रैल? कैन यू रिकॉल व्हाट हैपेंड इन 2021 अप्रैल, नॉट 2020, 2021 अप्रैल? डेडलीस्ट कोविड वेव हैपेंड। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की पता नहीं हालत ख़राब थी, लोग दर दर भटक रहे थे। किसी को याद है?
अनलेस एंड अनटिल आपका कोई बहुत करीबी गुजरा हो, पब्लिक मेमोरीज टू शॉर्ट। एग्ज़ाम से जस्ट पहले आप क्या करते हैं, जो एग्ज़ाम से जस्ट पहले पढ़ा होता है केवल वही काम आता है, पूरे साल चाहे जितना मर्जी रट्टा मार लें। सरकार भी इसी पॉलिसी पे चलती है, तो इसलिए हम डिबेट पे नहीं जा रहे। हु इज़ द फर्स्ट वुमन टू हेड प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया? दिस वाज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। पिछले साल का करंट अफेयर का क्वेश्चन। अपने ज्ञान के लिए रंजना प्रकाश देसाई को मार्क आउट करें। हु इज़ द फर्स्ट एवर फीमेल टू बी सेट टू बिकम द CJI ऑफ इंडिया? जैसे बीवी नागरत्ना है उनका नाम। ये सदा पता होना चाहिए इन लॉ एंट्रेंस, ठीक है जी, ओके। विच आर द फॉलोइंग इफ ट्रू मीनिंग हाइपोथेटिकल सिनारियो ना चारों के चारों, would most lend credence to the author's conclusion? Bail before jail is the norm in India. अच्छा, कह रहे समझ नहीं आया ये ऑप्शन, देखते हैं। There are a number of journalists in jail. कहता है would most lend credence to the author's conclusion meaning will support the author's conclusion. Some journalists easily get bail. Journalists from Kerala are often jailed. क्योंकि ऑथर की कंक्लूजन क्या थी कि भाई साहब बिकॉज आई बिलोंग टू अ स्पेसिफिक स्टेट एंड बिकॉज आई एम अ जर्नलिस्ट, गेस व्हाट हैज हैपेंड टू मी। अंडरस्टूड, ठीक है जी, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट weaken the author's conclusion? Okay, the state doesn't arrest journalists unless necessary. Sorry, it is very difficult to get bail under UAPA. मैंने जो सॉरी करी है क्या पता यही आंसर हो, किसी ने अभी मुझे बोला नहीं, कह रहा है ऐसे कैसे कर दिया आपने। जागो मोहन प्यारे, there are very few journalists in jail based on their domicile origin state. या domicile, the state doesn't target journalists based on their religion. Which of the following if true would most weaken the author's conclusion? अच्छा, let us say even if this is true, is it really weakening the conclusion as such? No. There are very few journalists in jail based on their domicile/origin state. Can you connect why this is the correct answer? Because it specifically relates to the conclusion. ठीक है जी, okay. It is very difficult to get bail under UAPA. It may be generally be true. How it doesn't satisfy this condition? No, right? अच्छा, the state doesn't arrest journalists unless necessary. ये हो सकता था. However, ये better option है. अच्छा, दूसरी बात, the state doesn't arrest journalists unless necessary. Generally may be true. कंक्लूजन से क्या लेना देना है इसका? कंक्लूजन तो स्टेट के बारे में बात करके गया ना स्पेसिफिकली, करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है जी, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द रीजन बिहाइंड द ऑथर हैविंग अ वेरी डिफिकल्ट टाइम इन मथुरा जेल? नाउ दिस इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन, दिस इज नॉट क्रिटिकल रीजनिंग, आराम से 10वीं कक्षा का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। कहता है ही वॉज केप्ट देयर फॉर अ ईयर। अच्छा, ही वॉज केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ओके। ही वॉज नॉट गिवन बुक्स to be read in his own language. अच्छा जी, the food was of North Indian cuisine and he भैया पहले तो तुम जाओ यहाँ से। He was not given books and he was kept in solitary confinement. जरा देखते हैं मथुरा कहाँ पे मेंशन था, कौन सी लाइन में, नीचे कहीं पे, यहाँ पर, इसमें, इससे ऊपर वाले में I have received, इससे भी ऊपर, अच्छा जी, I had a very difficult time in Mathura jail where I was kept for around a year when the COVID protocols were in place. So he was kept in solitary confinement, therefore this is the answer. Simple है कि नहीं है? Lollipop है. This is what we call as an easy passage based on the questions that have been given to you. Understood? ठीक है जी? पैसेज भी आज ही नहीं करना है। हर हफ्ते जब हम मिलेंगे हम 2 पैसेज और 1 लीगल रीजनिंग की सिचुएशन खोलेंगे, ठीक है जी। अब क्या टाइम हो रहा है? 3:30 3 बजे क्लास शुरू हुई थी, ठीक है जी। लास्ट के 15 मिनट पैसेज इसी मॉक का पैसेज बी खोल लीजिए, सॉरी लीगल रीजनिंग में पैसेज ए, एज इन जो केस है जयवंश का केस होगा, जिसकी पिछले साल सिलेक्शन हुई है ईश्वर की कृपा से।
अच्छा, मैं जब भी कहूँ जी सोल्यूशन हुई है वो है, हमारा कोई रोल नहीं है, मतलब है लेकिन उतना नहीं है, इनका ज़्यादा है, आपका रोल ज़्यादा ही रहता है। भैया हम तो कोच हैं, बैटिंग पिच पे किसने करनी है? अब आप जाके बॉल आ रही स्टंप पे और ऐसे कर दिए, अब मैं क्या ही कर लूँगा ना। विराट कोहली भी 0 पे आउट हो जाता है। अब सुनिएगा, कितने पैसेज करने हैं आपने? 6, ये वाले एज इन पैसेज एज इन केसेस, चलो इनका नाम केसेस रख देते हैं यहाँ से। केस नंबर 1 ऑफ पार्ट बी, ठीक है जी। इसके पीछे की शीट देखना, जस्ट इसकी फ्लिप साइड। दिस इज द स्पेस दैट हैज बीन गिवन टू यू टू राइट द आंसर। एनीथिंग आउटसाइड द बॉक्स विल नॉट बी इवैल्यूएटेड, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, इस साल सिंस ये वाला मॉक हमने तब कराया था बिफोर द एग्जाम टुक प्लेस, थोड़ी सी जगह ज़्यादा दी थी बिकॉज इट वॉज अ 10 मार्कर. In the exam that I took in 22, it was a 5 marker, only this much space was given to us. ठीक है जी, okay. Now, you have 6 such cases to solve and 1 essay, 1 hour 10 minutes. How much time do you think you can give per case? 7-8 minutes. चलिए पहला केस है, 8 मिनट का टाइमर लगा लीजिए। जब टाइमर शुरू करें, केस पढ़ें एंड जस्ट कीप दिस इन टू योर हेड कि ये एक ही बार पढ़ने को मिले। अब वहाँ तो ऑफकोर्स आप बार बार पढ़ सकते हैं, बट जस्ट प्रैक्टिस एज इफ देयर वॉज ओनली वन मौका। बार बार नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ के सीधा आंसर लिखना शुरू कर दें, जो मर्जी लिखना लिखिए, फिर मैं बताऊंगा कि क्या लिखना था। ठीक है जी, 8 मिनट का टाइमर लगाएं और हो जाइए शुरू। लोग कह रहे थे वंस अ वीक क्लास में कैसे होगा, यही है, इसके अलावा पेपर में कुछ नहीं है। पढ़िए ज़रा इसको। कोई आईपीसी नहीं कोट करनी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोट नहीं करनी, कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं कोट करनी, केवल ये कोट करना है। सो इन द एग्जाम व्हेन यू रीच दिस स्टेज you would already be through with part A का 1 घंटा 15 मिनट, and guess what happens with then? You are damn tired. बट अभी ये वाले केस का आंसर लिखें। कितना टाइम बचा? 2 मिनट्स, ठीक है जी। क्या? क्या बकली मारा था? तो उसको यूज़ करो इस पॉइंट को आंसर में, बस करो। लेकिन दिस विल नॉट गेट यू 10 मार्क्स नो। आई थिंक ये 200 से 350 350 वर्ड्स तो बोलते हैं कि आंसर शुड बी विद इन 350 वर्ड्स। हाँ 350 200 बेसिकली। देखो 10 मार्कर है, एक पेज तो लिखोगे, एक पेज लिखना पड़ेगा। 5 मार्कर में हम आधा पेज लिख कर आते थे। ठीक है जी, आओ जी चर्चा करें। यू थिंक जस्ट विदाउट रीडिंग फॉरगेट इट, डू यू थिंक दिस गेट्स यू 10 मार्क्स? कौन है? हाँ हाँ हाँ, उसको बोलो डिलीवर कर दो। आपको लगता है 10 मार्क्स ले आएगा आंसर? सिर्फ शक्ल सूरत पे 10 मार्क्स में से कितने मिलेंगे शक्ल सूरत पे? 6 6 7, ठीक है जी। 6 7 से ऊपर वैसे मिलने भी नहीं इस पेपर में।
दे डोंट गिव मोर देन 7. दिखाओ दिखाओ कितने मिलेंगे? 3 4. कितने मिलेंगे? 5. दुल्हन बिना मेकअप के शादी पे पहुंच गई, गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है जी, 10 मार्कर है, थोड़ी सी लप्पेबाजी करके शीट पूरी करनी है, पहली बात. नहीं तो प्राइमा फैशी यू विल बी एट अ डिसएडवांटेज. मैं कहता हूँ आपने टॉप क्लास लिखा हो, अभी तो मैंने पढ़ा ही नहीं. देख के कैसा लग रहा है? देख के भरा भरा लगा होना चाहिए कि हाँ भाई साहब अच्छा आंसर होगा. देख के पढ़ेगा तो वो अभी बाद में ना. सी एग्जामिनर भी इंसान ही, एक टाइम पे हमारे जैसा ही बंधु था, कोई भाई स्कूल कॉलेज से ही निकला होगा, राइट. जब देखेंगे तो इतना सा आंसर नहीं लिख देंगे. मैं कहता हूँ भाई साहब आपने टू द पॉइंट बिल्कुल वही आंसर बताया जो मुझे चाहिए, लेकिन अगर वो गंदा हो, इन द सेंस दिख गंदा रहा है, नंबर मिलेंगे? नहीं मिलने वाले. अब इन क्वेश्चंस में क्या ये क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलेंगे बाय द वे. अगर किसी अकेडमी ने ये मटेरियल चोरी करा है, जो कि अभी तक कर चुके होंगे, क्योंकि ऑनलाइन पीडीएफ ऐसा होता नहीं है कि किसी की मिले ना. जिन्होंने पिछले साल मॉक खरीदे होंगे उन्होंने भी स्कैन कर करके पीडीएफ भेजी. फिर वो क्या करेगा, इसमें नाम नूम बदल देगा. ये मेरी ओरिजिनल बनाई हुई सिचुएशन है. अब इसके अंदर काफ़ी चीज़ें इररेलेवेंट है, आपका दिमाग खाने के लिए दी गई हैं, जिनको आप आंसर में यूज़ कर ही नहीं सकते, इवन इफ़ यू वांटेड टू. देखते हैं. Jayvansh is a student at the University of Berkeley. Planned to travel back to New Delhi for Diwali festivities. Booked his tickets 1st of April. Okay. Travel date 11 November so that he could reach Delhi. Advance booking was done to take advantage of special scheme. He had planned a further trip to Amritsar on 24th of November to 27th of November. अच्छी बात है, सारे फैक्ट्स हैं. नीचे देखिए, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, एक्चुअल क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है. हाउ वुड यू डिसाइड द केस एंड वाई? मीनिंग यू हैव टू एक्ट एज द जज. The point is y के नंबर हैं. अच्छा, अब आप मान लेते हैं 10 मार्कर है, आपने कहा मैं हीरो बनूंगा. ये सारे फैक्ट्स 1 to 1 रिपीट कर दिए, तो कहेगा सुनो इधर पार्ट है तो तुम बहुत अच्छा किए थे क्योंकि पढ़ रहा है तुम्हारा पार्ट भी. अरे बाहर निकाल के फेंक दूंगा मैं यहाँ से. क्यों? अरे वो फैक्ट तो मैंने ही दे रखे थे, तो दोबारा उसको क्यों लिख दिया? अब इनमें से केवल वो फैक्ट लिखने हैं जो आप रीजन में यूज करेंगे. अच्छा, अब देखते हैं. ए, ही हैड प्लान्ड अ फर्दर ट्रिप टू अमृतसर and booked a 5-star hotel for his stay. Especially requested a video game console named PlayStation 5 in his room so that he could cope up with his video game addiction while being. क्या बकवास है ये, है ना जी? क्वेश्चन में कुछ फैक्ट ऐसे बकवास पूर्ण दे होंगे जो वैसे सर पैर उनका आपके आंसर से कोई नहीं है. ठीक है जी, उनका कोई रिश्ता नहीं है, आप उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे. अगर आप उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हो, आपके आंसर में नहीं जाएंगे. पॉइंटर नंबर 1. पॉइंटर नंबर 2, ही ऑल्सो प्लान्ड अ रोड ट्रिप टू न्यूयॉर्क विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 4700 किलोमीटर्स अवे. अच्छा जी, बहुत डिस्टेंस है. Hypothetical, while traveling from his hostel in Berkeley to New York's airport, a 6.4 magnitude earthquake struck Berkeley, leaving his town in tatters. He already traveled a distance of 500 kilometers from Berkeley. जयवंश के साथ साथ कौन है, जयवंश के खिलाफ कौन कौन है? जयवंश के साथ साथ वाले हाथ खड़ा करें. कोई भी नहीं, बेचारे को किसी ने पैसे ही नहीं दिए. अच्छा, और मान लेते हैं अगर क्वेश्चन कंपल्सरीली हो जाता, आर्ग्यू इन फेवर ऑफ जयवंश, क्योंकि होता है, अभी आएगा आगे ऐसा क्वेश्चन. अभी ज़रा उसके बारे में भी रीज़न सोचेंगे. एक साइड अभी हम करेंगे. अब जयवंश के सारे जयवंश के खिलाफ हैं, ठीक है जी. अगर इफ़ यू डिडंट यूज़ दिस रीज़न इन योर आंसर दैट ही हैड ऑलरेडी ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर्स, why do you think the bloody examiner has stated this fact to you for you to use it? Instead आप पहुंच गए, no, Jayvansh was an addict of video games. अगर यार, he had already left Berkeley. And let us say if you are Jayvansh's vakil, my client was so diligent
that he had already planned his trip in advance? How is it his fault? Earthquake is beyond his control. अगर आप जयवंश के खिलाफ एयरलाइन के वकील हैं, टेक्निकली स्पीकिंग आप अभी सब सारे के सारे एयरलाइन के वकील हैं भैया. हाउ डिड द earthquake affect him when he had already left 500 kilometers? He was already at a distance of 500 kilometers from Berkeley at the time when the earthquake struck. Reason number 1, if you have used this out of 10, your answer automatically gains a +2. And if you didn't use this, it is a -1, because this is what in law what we call as a material fact or a relevant fact. This is relevant to your decision. Is this relevant? PS5 is going to Amritsar relevant? यार मैं क्या करूँ, या आगे जाके उसके बाद क्या बोलते हैं भैया गोवा चले जाएं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लड़ाई तो एयरलाइन और जयवंश के बीच की है. आगे चाहे जो मर्जी करे ये आदमी, एयरलाइन का क्या लेना देना. ठीक है जी, अच्छा आगे आते हैं. He went numb for some time, paused his road trip before precisely accepting what had happened to his alma mater's hometown. He resumed his travel to New York. Okay, great. Upon reaching New York, he found that he had missed his flight by a few hours due to the news of the earthquake. Achha. The next available flight was only a day later, for which the airline was charging 150% extra. Okay, since it was the festival season and they had applied surge pricing. Due to these events, his planned surprise and his trip to Amritsar होना चाहिए था were also on the verge of being cancelled. जयवंश hastily, ये hastily शब्द क्या है? जल्दबाजी में. ठीक है जी. Accepted the airline's offer but told them verbally. Pointer number 2. Can you use this in your answer? The airline never agreed on paper to refund him or to give him any compensation. It was only a verbal promise out of customer courtesy. Right? And if Jayvansh had such a problem with his original fare, he was free not to accept it. आपने चाहे reasons लिखे हो या ना लिखे हो, just open up your mind that there is a possibility outside of whatever you have written, and you can use anything. There is no correct answer to this. However, one exoskeleton of the correct answer is use the relevant facts to make an argument. क्योंकि remember, the question is asking you, how would you decide? अच्छा, I decide in favor of Jayvansh because I decide in favor of the airline because I decide in favor of the airline because However, I would like to give a 10% coupon to Jayvansh. Allowed है ये आंसर में लिख ली. हाँ, it is allowed. Why isn't it allowed? It is open-ended. It is open-ended. But पहले एक crystal clear decision लेके बाद में अपना एक छोटा सा नन्ना सा कि एक लॉलीपॉप इसको भी दे दो, रो रहा है बच्चा. अगर देना चाहें कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, यू आर द जज, यू आर फ्री टू डिसाइड. भाई ये मेरी डिसीजन है. अच्छा, कोई यूट्यूब पे आके गए ये मत लिखना, ऐसे मत सोचना, जब तक उसकी बात नहीं सुननी तब तक, जब तक खुद का वो एनएलएस का प्रोफेसर ना हो. एनएलएस करेगा एक वेबिनार एग्ज़ाम से 3 हफ्ते पहले, 21 अप्रैल के आसपास होगा, 31 मार्च के आसपास एक ये लोग फ्री वेब सेशन करेंगे. ठीक है जी, उस टाइम उनसे भी पूछ लेना. दे विल टेक क्वेश्चंस, क्लैरिफाई कर लेना. किसी कोचिंग से नहीं, वेदर यू आर पार्ट ऑफ ग्रुप और नॉट. Everyone claims that they are Vishnu Bhagwan. Nobody really is. ये internal marking schemes हैं, these are subjective questions. Nobody can tell you what exactly that this is barred. No. I'll tell you what is barred. You cannot write the IPC, Contract Act, tort, Constitution यहाँ पर. That is barred. Because their prospectus officially says no prior knowledge of law is expected from the candidate. Nothing, none whatsoever. Is this question based on common sense? Yes, the entire part B is common sense. ठीक है जी, okay. अच्छा, he told them that he is taking up their offer only due to his further events, as in his further planned events, and that him reaching the airport late was not his fault. The earthquake was an act of God which had landed up in this difficult situation. If you were to decide in favor of Jayvansh, ये ना, it was not my client's fault. How was Jayvansh at fault? Jayvansh even planned his trip in advance. Jayvansh even left the town in advance. He was perfectly on time. If the earthquake happens, how is it his fault? यही तो आर्ग्यू करेंगे जयवंश के फेवर में, और कुछ आर्ग्यू करने का है ही नहीं. और करेंगे क्या?
Could you have argued on behalf of Jayavant? Yeah, sure, go ahead. If you can write a 10 marker. अच्छा, कई होते हैं हमारे अंदर के, अब हमारे अंदर हर आत्मा में अलग अलग रूप हैं, 50 शेड्स ऑफ ग्रे। एक है छुछंदर साइड, कि जो दुनिया करेगी उसका ऑपोजिट करूँगा। इसका बट ऑब्वियस आंसर तो हर कोई एयरलाइन के साथ जाएगा, लेकिन आपके अंदर का हरीश साल्वे जागे पेपर में काला कोट लेकर आएगा और कहेगा बेटा तू उल्टा चल। विल टेक द कॉन्ट्रेरियन अप्रोच। You are free to do so as long as mentally you can think whether you can write a 10 marker which looks like a 10 marker to begin with. Because if it doesn't, वो देखेगा ये आधे पेज का लिखा है, प्री बायस हो जाएगा उसके दिमाग में कि 5 नंबर से ऊपर तो इसको वैसे ही नहीं देने, और 5 भी नहीं दूंगा, 3 ही दूंगा। तो नॉर्मल अप्रोच से जहाँ 6 आने थे वहाँ 3 आ गए, और 3 में ही कट ऑफ का बेड़ा गर्क हो जाएगा सारा, राइट। कॉन्ट्रेरियन अप्रोच पे कंट्रोल रखें। टिप नंबर 2, मेंटली डिसाइड बिफोर हैंड विच साइड आर यू गोइंग टू आर्ग्यू इन फेवर या डिसाइड इन फेवर ऑफ। वाई? मान लेते हैं आपने आधा पेज दिखाना, ज़रा आंसर स्क्रिप्ट दिखाओ, कोई बात नहीं, दिखाओ वो, दिखाओ वो। मान लेते हैं यहाँ तक आंसर लिखा, ठीक है जी। केजरीवाल बने यू टर्न, मार यू टर्न। यहाँ से क्या करेंगे? कितनी जगह बची? 10 मार्कर डाल देंगे आप इतनी जगह में। डिसाइड बिफोर स्टार्टिंग द आंसर, डिसाइड किस साइड आप नैया लेके जाएंगे, और एक बार निर्णय ले लिया पीछे मुड़ के देखिएगा मत। ये शादी है, फेरे हो, व्हाट इज शादी? यू आर नाउ ऑल इन। शादी होते ही आपको दिख रहा होगा कि डिफरेंट मॉडल बेटर दिखाई दे रहे हैं। आईफोन 13 प्रो लेते ही कह रहे अब वो 15 वाला निकाल दी हैं भैया, USB-C लगाए हैं। मैंने नहीं लेना भैया, अभी 1-2 साल पहले ही लिया है, इतना पैसा नहीं, ठीक है जी। यहाँ पर यू टर्न नहीं लेंगे, अलाउड ही नहीं है, समझ लीजिए जगह ही नहीं है। ओनली अंडर एन एक्सट्रीम सर्कमस्टांस विल यू टेक अ यू टर्न। सेकेंडली, टाइम कहाँ है आपके पास? यू थिंक यू हैव द टाइम टू मेक कंसिस्टेंट यू टर्न्स इन पार्ट बी? तीसरी बात, दिमाग की दही हो चुकी होगी पार्ट ए करते करते पहले ही। पार्ट बी तक जब आप पहुंचे हैं तो आप 11-10 के बाद ही पहुंचे होंगे। पार्ट ए में ऐसा तो देखिए, ये सारा इंटेलेक्ट बेस्ड काम है। लाइक फॉर एग्जाम्पल राइट हो, मेरी भी माँ मेरे को कभी बार टॉन्ट मारते हैं, तू ज़्यादा करता ही क्या है। मेरे प्राण निकल जाते हैं बोल बोल के। अभी सुबह से मैं 2 जुडिशरी की क्लास ले चुका हूँ आपके पास आने से पहले, ठीक है जी। अच्छा, मैं अभी बात करूँ, फिजिकल लेबर तो नहीं है कि नहीं है? उससे क्या होगा? शरीर थकता है, ठीक है जी। यहाँ पे आप थके मरे पड़े हैं और आप कह रहे हैं एक यू टर्न और। दिमाग ना अंदर से कहेगा जल्दी वहाँ से हटो, कह रहे नहीं सुनूंगा, कह रहे मैं ड्यू जाऊँगा, मेरे को ये सीट चाहिए ही नहीं। यकीन मानिएगा यही फीलिंग आ रही होती है। जो निर्णय लेंगे, नो यू टर्न अलाउड, देयर इज नो टाइम। अच्छा, सेकेंडली, ऑन द फेसेस ऑफ ऑन द प्राइमा फैशी फॉर द एग्जामिनर सेज सारा काटा पीटा पड़ा है, डू यू थिंक इट लुक्स गुड? एग्जामिनर, द प्रोफेसर विल से नो इट डज नॉट मैटर एट ऑल, इट मैटर्स, दे कैन नॉट पब्लिकली एडमिट इट। Even if you were, let us say, a 35-40 year old checking the answer script और आधी आंसर स्क्रिप्ट कटी पटी पड़ी है, will you be giving as much marks as to someone versus a neat and clean, neatly organized answer script? I'll show you some very good sample answers as well, जो पिछले साल लोगों ने मॉक्स में लिखे थे, लेकिन उसमें भी हमें दिमाग में रखना होता है कई लोगों ने मॉक यहाँ दिए, आप सब मॉक्स यहाँ देंगे। ऑनलाइन वाले मेजॉरिटी लोग जो दिल्ली नहीं पहुँच सकते वो घर में देंगे, लेकिन घर में मॉक देना वर्सेस यहाँ मॉक देने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। क्यों? घर में आपका एनवायरनमेंट अपना है, बीच में मम्मी ने कहा ले कोल्ड कॉफ़ी पी ले तो आप पी भी लेंगे। यहाँ तो ना कोई मम्मी आ रही, हम अलाउ ही नहीं करेंगे। ये एग्ज़ाम सेंटर बना होता है एंडल सैट से जस्ट पहले। एडवांटेज ही है ये ऑफलाइन कोचिंग की। अच्छा, ऑनलाइन वाले भी आएंगे, आपके जो मित्र जो ऑनलाइन बैच में हैं उनके पास भी ये प्रावधान है कि वो यहाँ के ऑफलाइन मॉक दें।
इस एग्ज़ाम का मॉक ऑफलाइन ही दे। क्यों? क्योंकि टाइपिंग थोड़े ना करनी है, पेन चलेगा तो नंबर मिलेंगे। अच्छा जी, एक्ट ऑफ गॉड हो गया। द स्टाफ मेंबर ऑफ द एयरलाइन अश्योर्ड हिम दैट द एयरलाइन विल डू देयर बेस्ट टू कॉम्पनसेट हिम इफ पॉसिबल। नाउ दिस पॉइंटर कैन बी यूज्ड बोथ वेज। एयरलाइन की तरफ से कह रहे हैं तो वी हैड ओनली गिवन हिम अ वर्बल एश्योरेंस इफ पॉसिबल, एंड जयवंश की साइड से कह रहे हैं तो दे हैड गिवन मी एन एश्योरेंस देयरफॉर आई एक्टेड ऑन इट। अच्छा, आपका खुद का ही दिमाग आप ही को काउंटर कर जाएगा, लेकिन देखो इफ पॉसिबल कह रहे हो, तू चुप रहा है। वकील का काम क्या है? सारे पॉइंट थोड़े ना खोल देगा। अभी दिवाली सीजन आ रहा है, आधी से ज़्यादा दुनिया जुआ खेलेगी, ठीक है जी। वहाँ पे वो 3 पत्ती गोल्ड लेके बैठे होंगे, सामने वाले को बता देंगे कि आपके पास कौन सा पत्ता है। सारे नहीं बताएंगे, मरना तो सामने वाले को ब्लफ में। कह रहे मुझे नहीं लग रहा तेरे पास पत्ते हैं। कह रहे मैं यही तो चाहता हूँ कि तू सोचे, इफ़ पॉसिबल। आपका दिमाग बोलेगा, कह रहे तू चुप बैठ। हमने ये नहीं बोलना, हम केवल इस पॉइंट पे लड़ेंगे। किस पॉइंट पे? कि योर स्टाफ हैड assured us, therefore we took this action, because you are only arguing या in deciding in favor of जयवंश if you are taking that side। ठीक है जी, आप पूरा ही अपने आप को ही ना काउंटर मार देना वहाँ पर, आपने एक ही साइड पे जाना है। ठीक है जी, आर या पार। Upon landing in India, he sent an email. The airline refused to cater to such a claim. Filed a complaint with the Consumer Service Tribunal in New York. यहाँ से तो कोई पॉइंट नहीं है, the case is assigned to you. That's it. That is the answer. If you are deciding in favor of the airline and you do not use that he was already 500 kilometers, that there was only verbal assurance and our staff had said if possible, and 150% वो जो surcharge है, that is standard business practice. It wasn't that the airline was exploiting him, it was available to all the customers as well. अब आप कहेंगे अभी तक तो इतने बड़े प्रवचन में आपने पॉइंट नहीं बोले। मैं जितनी देर बोलते रहूँगा उतने पॉइंट निकलते रहेंगे, और सारे सही हैं। आपके पास टाइम नहीं है कि आप सारे लिखें। 10 मार्कर में 3 ऐसे रीजंस जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगते हैं उस सिचुएशन के हिसाब से, जो सिचुएशन वो देंगे आपको। अच्छा, आप कहेंगे ऐसी सिचुएशन आ गई तो बहुत अच्छी बात है। 2022 में ऐसी सिचुएशन थी, पढ़ लीजिएगा। आपके पास 2022 का मैंने पैसेजेस दे रखे हैं, वो भी सब अभी डिस्कस करने हैं। हर हफ्ते हम जब मिलेंगे 2 पार्ट या 1 पार्ट भी करेंगे। दैट इज़ योर क्लास। ठीक है जी, और अप्रैल तक अगर हम हर हफ्ते मिलके 2 पार्ट है और 1 पार्ट भी करेंगे, बतेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसके बाद मॉक भी तो करेंगे, और मॉक में मैं बैठ के आपके आंसर चेक करूँगा, पार्ट बी वाले। हो गई तैयारी? और कितनी तैयारी होती है? अभी वहाँ पे एक आई थिंक बाहर कोई आया था, हो गया जी, उसके पिताजी कह रहे हफ्ते में 1 बार बेकार कोचिंग, चलो आगे चलो। अरे भाई साहब क्या करें? नहीं, हफ्ते में 3 बार ही बुला के क्या करें? आपको क्या लगता है आप इस सिलेबस के साथ क्या कर लेंगे? मोर देन इनफ प्रेप है, कपल्ड विद मॉक्स ऑफ कोर्स। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस साल मैं 5 बना दूँ। पिछले साल मैंने 2 बनाए थे, 2 के मैं 4 तो बना ही लूँगा इस साल। अभी से बनाने शुरू करेंगे तो अप्रैल तक बन ही जाएंगे, क्योंकि ये बैठ के सोचना पड़ता है ना। मुसीबत ये कौन सी किताब में है? आप सोचेंगे किताब मिल जाएगी। इसका केवल एक ही तोड़, क्लैट और AILET के पास्ट ईयर्स उठाएंगे, जो प्रिंसिपल फैक्ट के जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें सिर्फ ये प्रिज्यूम कर लीजिएगा नीचे MCQs नहीं है। यू विल गेट योर प्रैक्टिस मटेरियल इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस, एंड देन ट्राई राइटिंग एन आंसर। अच्छा, अब होमवर्क ये है, होमवर्क आपने जो भी साइड ली है इसके अंदर सबने एयरलाइन वाली ली है, जयवंश के बिहाफ पे आंसर लिखने की कोशिश करो। प्रिज्यूम दैट आई हैड गिवन दिस इंस्टेड एज इन, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि आर्ग्यू इन फेवर ऑफ जयवंश। ठीक है जी, तो एक तरह से एक ही क्वेश्चन में एंड ऑफ स्टोरी। ठीक है जी, आज की क्लास खत्म हुई। एनएलसैट ओनली कौन कौन है? एक नहीं, एनएलसैट ओनली यार 1 2 3 लोग। ठीक है जी, आपसे मिलेंगे अगले थर्सडे, टाइमिंग ग्रुप पे आ जाएगी। CUET PG का बैच में कौन कौन है? सारे हैं? ठीक है जी, तो फिर तो आप चलो कल ही मुलाकात होनी है, कल वाली क्लास है। ठीक है, कल और परसों आपसे मुलाकात होगी। ठीक है जी, मिलते हैं अगले हफ्ते एनएलसैट के।